full of time devoted in ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, Mumbai, for spreading the spiritual knowledge of Bhagavad Gita in society since 2012. Now, sir is listed 161 JLs of 17 states and 6 union territories of 7 LVS regions listed in the last 2 years. Values, spiritual values, the idea of Sri Krishna. Also, 1,000 and plus public schools and colleges are visited for various education taught in the last 12 years. This is what being a Navodaya student, extremely well performance in 10th and 12th, sir is completely dedicated the ideas of Sri Krishna. Remember, ISKCON, sir is to inspire, to motivate, to enlighten the importance of value education and spiritual education. I am very thankful, sir. Please stay. So I thank our dear Principal Sir, Shri D. Vijay Bhaskar, our Vice Principal Sir, and all teachers to give me the opportunity to serve here at JNB Rangareddy of Telangana State. This is my 162nd school of Navodaya of 18th state in last 2 years. So I feel happy to be with you today afternoon here. Do you feel happy to see me? Thank you. आप लोग सब ऐसे बैठे हैं जैसे एकदम थक गए हैं, हाँ, सोने वाले अभी। थोड़ा अच्छे से बैठिए, डोंट टच बैक टू द चेयर, सीधा बैठना है, अलर्ट। ऐसे बैठेंगे तो बुद्धि जो है काम नहीं करता है। आप लोग हिंदी समझते हैं कि नहीं? छोटे बच्चे समझते हैं हिंदी? इंग्लिश? कौन सा भाषा बोलूँ, हिंदी बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ? Okay, I can speak English, no problem. But you should understand. All you understand English? Simple English? Okay, please pay attention. This thought, this idea of serving the society after my education came from Navodaya only, because Navodaya Samiti gives guideline, motivation to the students that enter to learn and then leave to, you know it, on all the gates of Navodaya schools it is mentioned. And all the beautiful quotes in the campus of Navodaya schools give us wonderful knowledge, inspiration, motivation. If we pay attention and take the message from those quotes, thoughts, quotes, unless we read the quotes, unless we understand that message and think to follow the path, we don't get benefit. जैसे बोलते हैं, come early to bed, early to rise makes one healthy, wealthy and wise. आपने सुना नहीं कभी कि early to bed, बोलो early to bed, बोलो early to bed, early to rise makes one
हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। कि हमें जल्दी सोना, जल्दी उठना क्या बनाता है? हेल्दी बनाता है, वेल्दी बनाता है और बुद्धिमान बनाता है, वाइस, बुद्धिमान। लेकिन आप लोग जो बच्चे हैं जब वेकेशन में जाते हैं तो जल्दी उठना भूल जाते हैं। नवोदय में तो जल्दी उठते हैं, स्कूल में कितने बजे उठते बच्चे सुबह? हाँ, 5 बजे उठते, 5 o'clock वेकअप अर्ली मॉर्निंग। इच्छा होना हो उठना पड़ता है ना। साधन बसता है यहाँ पे, क्या सिटी बसती है? सिटी बसती ना। तो हमें उठना पड़ता है, अर्ली टू बेड। और फिर सुबह सुबह उठ के हमें जॉगिंग और एक्सरसाइज करना पड़ता है कि नहीं? बच्चों का इच्छा नहीं होता दौड़ने का, टीचर भगाते हैं, एक रन रन, भागो, चलना नहीं है, भागना है। आपका ट्रैक होगा ना, ग्राउंड पे ट्रैक होगा दौड़ने का, जॉगिंग ट्रैक, तो वहाँ पे हमें भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। इच्छा नहीं होती है दौड़ने का सुबह सुबह नींद में, लेकिन टीचर भगाते हैं, चलो दौड़ो। तो अच्छा है, बिकॉज विदाउट एक्सरसाइज और बॉडी डजंट बिकम healthy, strong, better. So we should know our habits in school life are very important. The habits we cultivate, we develop in school life will continue for whole life, long life, continue. Good habits, we should maintain them all time. Habits are not only for, good habits are not only for school life, it's for whole life. Good habits, जल्दी सोना, जल्दी उठना, मोबाइल नहीं खेलना या टीवी ना देखना। टीवी देखना मतलब क्या है? वो तमाशा, सिनेमा, वो नहीं देखना है। कुछ अच्छा प्रोग्राम है, कुछ अच्छा वीडियो है, कुछ अच्छी मूवी है, अच्छी मूवी जिसमें कुछ ज्ञान मिलने वाला है, कुछ अच्छा सीखने वाला है, तो देख सकते हैं। लेकिन बस बॉलीवुड का सिनेमा जो मन को भटकाता है, गलत चीज़ों को हमें दिखाता है, उससे बचना चाहिए। क्योंकि आजकल की मूवी में, बॉलीवुड की मूवी में, हॉलीवुड की मूवी में केवल क्या दिखाते हैं? हिंसा दिखाते हैं, नशा दिखाते हैं, गलत चीज़ें दिखाते हैं, जिससे मन बिगड़ता है, मन दूषित होता है। माइंड बिकम्स contaminated, polluted with the bad scenes of violence, corruption, intoxication, addictions. उससे बचना चाहिए। We should protect ourselves from the bad habits, bad influence of bad movies. In Navodaya, we are fortunate that we have restrictions on television watching, है ना? In our homes, when you go on vacation, there is no such restrictions many times. You get mobiles in hand, the whole day you play with mobile. You play those video games, mobile games, and that pollutes your consciousness, intelligence, mind. See, for 20 minutes, for half an hour, you use mobile for some learning, it's okay. But whole day with mobile, simply playing with useless games of no benefit. Okay, so I will speak about half an hour on life skills, life values and life science. 3 topics. First topic is life values. Important. Why important? Because these values will make our life valuable. Values like respecting others, respecting teachers, elders, and all others. Respecting each other. Why? All are our family members. We say in the plays in the morning, daily. What we say? All Indians are my brothers and sisters. India is my country. I love my. And love is not simply speaking, oh, I love, I love. Love means to serve. Mother, father, parents love their kids, so they always do some service for their kids. Mother whole day busy with services, serving the family.
father doing so much hard work for serving, maintaining the family. So love means to serve. When we say I love my country, what is expected? What is expected? Service is expected. Without service, no love is expressed or real. No love is real without doing some service. What is service? Some beneficial activity, some welfare activity for society, for others. So values like honesty, respect, humbleness. We say Vidya Vinayana Shobhate, or we say Vidya Vinayana Shobhate, means humbleness will make your knowledge beautiful, look beautiful. Without humbleness, humility, we say humility. Vinayashilta, namrata, we say Hindi, namrata. Humility, humbleness. Without humbleness, our knowledge or life has no value. Because when you know that I am not so big, I am small one, means I am not so much significant, I am ordinary. See, you may be having big post, but we should think, I am not so big, I am ordinary. Why? That will keep you pure and sincere, loving. When you think I am so big, you become proud. You become proud and you don't respect others. You exploit others. That's why humbleness, humility is very important. Vidya Vinayana Shobhate. Vinayata is very important. Namrata. Then the knowledge value. We say knowledge is powerful. Knowledge is power. So values like knowledge, values like self-confidence, Atma-Vishwas, self-control, Sayam, control on our senses, Indriya Sayam. Sense control is important. Mind control is important. मन के ऊपर संयम आवश्यकता है. संयम बड़ी शक्ति है. संयम बड़ी शक्ति है. संयम. Then आत्मबल. Don't change now. आत्मबल. आत्मबल आवश्यकता है. We need bal, strength for good life. So values like knowledge, strength, confidence, self-confidence, self-control, peace, आत्म शांति, मन का शांति, मन शांति, peace of mind, important. So valuable, very valuable. Peace of mind. Many people don't get peace of mind. They get money but no peace of mind. Very important. People give value to money but no value to our peace of mind. Peace of mind is very important. So values like peace of mind, values like satisfaction, samadhan, santushti, samadhan, very important. Real wealth is satisfaction. Real wealth is satisfaction. If we have life satisfaction, if you have your self-satisfaction, you can be really wealthy man. If you have all the money, you have all the big positions of the society, but no peace of mind, no joy of life, and no satisfaction in life, then no value, no use. Okay, so these values I will speak about. Life skills. There are countless skills of life. Listening is skill, study is a skill, memorizing is a skill, speaking is a skill, communication is a skill, singing is a skill, dancing, countless are there. I will speak about those skills. And the highest skill, the biggest skill is yoga. In Bhagavad Gita, it is mentioned by Lord Krishna in 3rd chapter of Karma Yoga that the highest skill, the supreme skill is yoga. In IIT logo, IIT
colleges, logo is there. This is like nowadays schools we have logo. GNV logo is there, and then two words are there in logo. Down, bottom, two words. Which words are there? Two words. Pragyanam Brahma. Pragyanam Brahma. So in IIT logo, three words are there. Somebody knows those three words? Yoga Karmasu Kaushalam. They have taken those words from Bhagavad Gita 3rd chapter. In LIC, Life Insurance Company, LIC, logo is there. They have taken three words from Bhagavad Gita only, 9th chapter. Do you know that word? Those words? योगक्षमम वहाम्यहम, योगक्षमम वहाम्यहम। ये तीन जो शब्द हैं कहाँ से लिए हैं? भगवत गीता से लिए हैं। देखो, मेनी कंपनीज, मेनी स्कूल्स, मेनी कॉलेजेस टेक सम वर्ड्स फ्रॉम वेदास, उपनिषद, भगवत गीता टू एम्फसाइज इट्स वैल्यू। लाइक नवोदय लोगो, टू वर्ड्स, प्रज्ञानम ब्रह्म। Why they have taken these words, two words? Some value is there, some importance is there. You know the meaning of these words? आपको पता है इसका मतलब क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या आपको पता है? किसको पता है? यहाँ लड़कियों में किसको पता है? Do you know the words of the meaning of two words? Pragyanam Brahma. Girl side, nobody knows. Two words only. Pragyanam Brahma. Boys side, do you know the meaning of Pragyanam Brahma? You don't know? So important. All the T-shirts have those logos and two words Pragyanam Brahma. All places it is mentioned Pragyanam Brahma. Please pay attention. Last wise, only for a short time I am here to speak about life skills. See, two words, Jnanam and Brahma. Jnanam means knowledge. So there are many kinds of knowledge in the society, in the world. Though Prajnanam, Pra means like the most important, the highest, Prajnanam, Prajnanam, Siddhi, Prasiddhi, prefix is there, Pra. Pra means to highlight the importance, significance of that other word, Jnanam, Prajnanam. The highest knowledge is Brahma Jnana, Brahma. What is Brahma? Soul, spirit soul, divine soul, spirit soul, Brahma. In Vedas, two words are there. Aham Brahmasmi. Have you heard this? Aham Brahmasmi. They say that our real identification, our real identity is of soul, which is deathless, which is birthless, which is permanent, eternal, immortal. Body is mortal, body is perishable, destroyable, destructible. But our real self, divine soul, is immortal or eternal, deathless. We should know that our real self is not the body of flesh and bones. Our real self is the divine spirit soul, who is the divine part of Supreme Lord. In Bhagavad Gita, Lord has mentioned in many places that we all are the divine parts of God. We say in the prayer, Navodaya prayer, you know it. I will chant. रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। आगे, धरती पूजा स्थान। गाते आप लोग? हाँ, गाते हैं। लेकिन समझो, देखो क्या बोलते हैं, हम सबका एक भगवान हो। क्योंकि है, हम जो बोलते हैं सब पूजा के बाद, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, किसको बोलते हैं? पीएम सीएम, बिजनेसमैन, किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। आगे, तुम्ही हो साथी
क्या बोलते हैं भगवान को? तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। अपने बहुत लोग हैं, अपने स्कूल के बच्चे हैं, हाउस वाले हैं, गांव वाले हैं, बहुत लोग हैं अपने। नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, माता पिता हैं, गांव वाले हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। इसलिए बोलते हैं जो भी है अपने वो थोड़े समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। ये बॉडी भी जो अपने पास है, फिजिकल बॉडी, हमेशा के लिए किसी का नहीं होता है। ये शरीर जन्म लिया है तो हमेशा बदलता रहता है। आप देखो आपका बॉडी जो है समय के साथ बदलते रहता है। बचपन में जब आप छोटे थे, LKG UKG में, आपका बॉडी ऐसे था, अलग था, छोटा था। छोटे बच्चे जो खेलते थे किसके साथ? खिलौने के साथ, टॉयज़ के साथ। यू आर प्लेइंग विद द टॉयज़। Now you don't play with the toys. You play with football. You play with volleyball. You play with bat ball. You don't play with toys. Motor car. You don't play. Body changes with time. Mind changes all time. Our mind, our thoughts change all time. Our intelligence changes. Our level of intelligence changes with time. सुबह सुबह दिमाग चलता है, अभी सब लोग बच्चे सो रहे हैं, वेकअप प्लीज़, जो लोग सो गए थोड़ा जग जा। तो हम लोग अपना दिमाग नहीं चलता है समय के साथ। सर अभी भोजन लिया, बहुत थक गया, अभी सो जा। तो प्लीज़ पे अटेंशन। इंटेलिजेंस बहुत समय दिमाग जो है, बुद्धि काम नहीं करता है। लेकिन बच्चों, हम जो है आत्मा, जीवात्मा, क्या बोलते हैं? जीवात्मा, स्पिरिट सोल। क्या बोलते हैं? स्पिरिट सोल, जीवात्मा। ये कभी बदलता नहीं है, हम वही है जो जन्म लिया था माँ की पेट से, माँ की कोख से, गर्भ से। जो हम जन्म लिए थे बच्चे, वो आत्मा, और आज जो है नवोदय स्कूल में पढ़ने वाला वो एक ही है। आपका माँ, आपका अम्मा जो है ये नहीं बोलेगा जो बच्चा सर जन्म लिया था वो अलग था, आज जो नवोदय में पढ़ता है वो अलग है। हाँ, बॉडी बदल गया है, उसका फेस बदल गया है, उसका साइज़ बदल गया है, लेकिन बच्चा नहीं बदला है, क्योंकि बच्चा बॉडी नहीं है। बच्चा वो बॉडी में रहने वाला कौन है? आत्मा है, सोल, लिविंग इन द बॉडी। जैसे आप लोग बोलते हैं माई बॉडी सर, माई बॉडी इज फैट, माई बॉडी इज स्लिम, ऐसा कोई बोलता है? आई एम द बॉडी? Nobody says, please pay attention. Nobody says I am body. We say my body is fat, my body is slim, my body is white, my body is black. ऐसा बोलते हैं my body, मतलब हम बॉडी नहीं है। जैसे बोलते my vehicle is Luna, my vehicle is क्या बोलते हैं? होंडा, सुजुकी। ये नहीं बोलते आई एम सुजुकी, आई एम लूना, ये नहीं बोलते, क्योंकि माई व्हीकल। वैसे बॉडी, माई बॉडी बोलते हैं, आई एम बॉडी नहीं बोलते, माई बॉडी बोलते हैं। मतलब हमें समझना चाहिए बच्चों, हम बॉडी नहीं हैं, हम बॉडी में रहने वाला कौन है? व्यक्ति है, इंडिविजुअल पर्सन, आत्मा जिसे कहते हैं। तो भगवान का क्या है? अंश है। अंश मतलब क्या है? पार्ट ऑफ गॉड। इसीलिए अपना स्वभाव, अपना नेचर, स्वभाव भगवान जैसा है। भगवान जैसा है, क्या है अपना नेचर? सच्चित आनंद, कंबाइन किया तो सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। सत मीन्स अनचेंजिंग, नॉन चेंजिंग, अनचेंजिंग। सत्य मतलब जो बदलता नहीं, सत्य, शाश्वत, परमानेंट, सत्य। चित्त का मतलब क्या है? चित्त, चिन्मय, ज्ञानमय। आत्मा क्या होती है? ज्ञानमय होती, चिन्मय। और आत्मा क्या होती है? आनंदमय। बाय नेचर द सोल इज ब्लिसफुल, जॉयफुल, आनंदमय। आत्मा क्या होता है? आनंदमय, समझते हैं? ब्लिसफुल, जॉयफुल। हमें सबको क्या चाहिए? दुख चाहिए, सुख चाहिए? हमें आनंद चाहिए, सुख चाहिए। क्यों? आत्मा आनंदमय है, कोई दुख नहीं चाहता है। बच्चों, तो ये जो लाइफ स्किल्स है जो बताया, योग, भगवान बताते गीता में, योग कर्मसु कौशलम, द हाईएस्ट स्किल
इज योग मतलब क्या? जोड़ना। योग मतलब जोड़ना, संबंध जोड़ना, संबंध, कनेक्शन। किसके साथ? भगवान के साथ। हम जो बोलते हैं इतनी शक्ति हमें देन दाता, आप लोग सुना है कभी प्रेयर? गाते होंगे यहाँ पे। क्या बोलते हैं? बोलो, इतनी शक्ति हमें देन दाता। गाओ। पहले हाथ जोड़ना है, सबने हाथ जोड़ना है, अच्छे से बैठना है, ऐसा लेट के नहीं प्रेयर बोलते हैं, थोड़ा सावधान। स्कूल सावधान, बोलो। हाँ, हाथ जोड़ो, पहले भी हाथ जोड़ो, अच्छे से बैठो। भगवान से मांगना है, भगवान से प्रेयर करना है। प्लीज प्रे टू द सुप्रीम लॉर्ड हु इज अवर मदर फादर, लविंग फादर। भगवान अपने परम पिता है, गॉड फादर बोलते हैं, गॉड फादर। व्हाट इज योर फादर? सुप्रीम लॉर्ड। मैं जो बोलता हूँ पीछे बोलिए, इतनी शक्ति हमें देन दाता। आपका आवाज़ बहुत अच्छा है तो प्रेम से गाना है, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता। लगता है आपको शक्ति नहीं चाहिए, आप ऐसे सो रहे हैं, आप ऐसे लेट रहे हैं। देखो अपनी बुद्धि इतनी कम हो गई है, हमें समझ में नहीं आता है कब हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। हम आपके लिए आए हैं, हम आपको अपना मानते हैं, हमें कोई पैसा नहीं कमाना है, हमने नवोदय से सीखा, जिससे हम अपना जीवन का समाधान पाया, हम वही ज्ञान को देने आए हैं कि ये केवल बोलने के लिए नहीं है प्रेयर, केवल गाने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, जीवन में पालन करने के लिए है। प्रतिज्ञा जो लेते हैं वो केवल बोलने की चीज़ नहीं है, प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा वचन होता है। वचन जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये अपनी परंपरा है, संस्कृति है, अपनी सभ्यता है जिसमें शक्ति होती है। जब हम अपने ही भगवान को नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, सोचेंगे हमें क्या मिलेगा, ये भूल गए हैं, हम समझ नहीं पाते हैं वो भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान से ही आए हैं, भगवान के अंश है सदा के लिए।
हम दुनिया के मेहमान हैं थोड़े दिन के लिए, पता नहीं कितना दिन है, पता भी नहीं कि जीवन कब, बॉडी कब छूट जाएगा पता नहीं, कि बॉडी कब नष्ट हो जाएगा, भूकंप से, विमान हादसे से, या कोई रेलगाड़ी का एक्सीडेंट से, पता नहीं गाड़ी कब, बॉडी कब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम जो चाहते हैं हमेशा जीना, वो संभव है आत्मा के लिए। यदि हम भगवान से जुड़ते हैं और भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ते हैं तो हमेशा हम अपने जीवन का नित्य अनुभव ले सकते हैं कि अपना जीवन थोड़े दिन का नहीं है, अपना जीवन सदा के लिए है, बॉडी के लिए नहीं। क्योंकि हम बॉडी नहीं हैं, हम बॉडी में रहने वाला कौन है? जीव आत्मा है। देखो शरीर में, बॉडी में, शरीर में जीव है तो जीवन हम देखते हैं। जैसे बॉडी, ये चेयर एक बॉडी है, टेबल एक बॉडी होता है, ये बिल्डिंग, ये जो हॉल है एक बॉडी है, इसका एक साइज़ है, शेप है, लेकिन इसमें जीव नहीं है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। आत्मा का लक्षण क्या है? सिम्टम, आत्मा का लक्षण कि हम बोलें हाँ इसमें आत्मा नहीं है। आत्मा का लक्षण है, सिम्टम, कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस, चेतना, कॉन्शियसनेस। डेड बॉडी भी बॉडी होती है, डेड बॉडी जिसमें सब पार्ट्स है बॉडी में, लेकिन डेड बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं होता है, चेतना नहीं होती है। पहले था, लेकिन जब डेथ हो गया, वो आत्मा निकल गया बॉडी से, तो क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस हो गया, बॉडी डेड बॉडी हो गई। बच्चों हमें समझना चाहिए सबसे बड़ा स्किल है योग। क्या लिखा है? योग कर्मसु कौशलम। अपने सारे कामों में, कर्मों में, इन ऑल ऑफ एक्शंस, इन ऑल ऑफ एक्टिविटीज, द हाईएस्ट स्किल इज योगा। योगा मीन्स व्हाट? टू कनेक्ट टू दी सुप्रीम लॉर्ड। जब भगवान से जुड़ते हैं, कैसे जुड़ेंगे भगवान से? श्रद्धा से। श्रद्धा, फेथ। फेथ इज वेरी पावरफुल। विश्वास बड़ी शक्ति होती है। विश्वास के साथ हम भगवान से जुड़ सकते हैं। यदि विश्वास नहीं होगा भगवान में, हाँ कौन भगवान को मैं नहीं मानता, तो क्या होगा? हमें विश्वास नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा। क्यों? ये आत्मा भी हम जो है भगवान का ही तो है अंश। भगवान को नहीं मानेंगे तो हमें विश्वास कहाँ से आएगा? हम केवल बॉडी का सोचेंगे बस। लास्ट पॉइंट, प्लीज पे अटेंशन। लाइफ साइंस। हम साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं। मुझे बताइए आप लोग साइंस का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? साइंस का डेफिनेशन क्या है? साइंस का डेफिनेशन जोर से बोलना है। आप लोग बोलिए। हाँ, व्हाट इज साइंस? डेफिनेशन ऑफ साइंस। ओके बेटा, तो हमें नहीं पता है कि साइंस का व्याख्या क्या होता है। देखो, हम साइंस के नाम पे जो पढ़ते हैं आजकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मॉडर्न साइंस, ये केवल इंफॉर्मेशन है। इसका बेसिस ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन थिंकिंग है, जिसमें दोष होता है, जिसमें लिमिट्स होता है, लिमिट दोष होता है, कमियां होती है, गलतियां होती है। इसलिए हमेशा हमें बार बार सर्च करना पड़ता है, रिसर्च, बार बार ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमसे गलतियां होती है। जो हादसा हुआ, जो विमान का हादसा हुआ, अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुई, क्यों हुआ? गलती हो गई। क्या गलती हो गई? वो पायलट समझ नहीं पाया जब टेक ऑफ से पहले, जब उसने चेक किया एरोप्लेन को कि इसका इंजन जो है जाने वाला है, फेल होने वाला है, समझ नहीं पाए। क्योंकि हमसे सब कुछ समझ में नहीं आता है, हम सब कुछ समझ नहीं पाते हैं, हमसे गलतियां होती है। बाय नेचर हम बोलते ना, कहावत भी इंग्लिश में, टू एयर इज ह्यूमन। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है। हमसे गलतियां होती है, मनुष्य हैं, गलतियां होती है, क्योंकि अपना बुद्धि छोटा है। लेकिन हम जब भगवान से जुड़ते हैं
जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, शक्ति देते। इतनी शक्ति हमें देना दाता। जब भगवान की शक्ति मिलेगी, जो हम नहीं जानते हैं वो सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं भगवान से शक्ति लेके। ओके, तो लाइफ साइंस का मतलब बोलता हूँ आपको। अब देखिए, बायोलॉजी पढ़ते हैं आप लोग, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस बायोलॉजी, बट दुख की बात है, दुर्भाग्य है, वो बायोलॉजी में कहीं पे भी लाइफ का कोई चीज़ नहीं है, ओनली बॉडी स्टडी है। ध्यान दीजिए बच्चों, 9, 10 क्लास बच्चे, 8 क्लास बच्चे, ध्यान दीजिए। आप समझ सकते हैं, छोटे बच्चे पता नहीं, बड़े बच्चे समझ सकते हैं। बायोलॉजी में केवल बॉडी स्टडी है, मन का कोई अभ्यास नहीं है बायोलॉजी में। बुद्धि बड़ी शक्ति है, वो भी कुछ नहीं है। अहंकार, ईगो, वो भी एक शक्ति होती है, अपनी पहचान, अहंकार, अहम, वो भी कोई ज्ञान नहीं है। और जो हम हैं, जीव, आत्मा, उसका कहीं उल्लेख भी नहीं है कि जीवन क्यों है। जीवन बॉडी की वजह से नहीं है, जीवन आत्मा की वजह से होता है। ये कोई बायोलॉजी नहीं बोलता है, मेडिकल साइंस नहीं बोलता है। आप MBBS पढ़िए, MBBS MD कोर्स किताब देखिए, कहीं पे भी आत्मा का कोई वो लोग ज्ञान नहीं देते हैं, नहीं मानते। क्यों? उनका दुर्भाग्य है, उनको रियल साइंस पता नहीं, लाइफ साइंस की। लाइफ देखिए, आपने देखा होगा, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, दिमाग भी कम है, मन भी ठीक नहीं है, पागल है, तभी जीवन होता है, तभी उसका जीवन चलता है। क्यों? आत्मा है अंदर। मतलब बॉडी के पार्ट्स भी कट गए, तभी आत्मा यदि है तो जीवन चलता है। लेकिन यदि बॉडी के सब पार्ट्स है लेकिन आत्मा नहीं है बॉडी में, तो जीवन नहीं हो सकता। हमें समझना चाहिए, लाइफ साइंस मतलब आत्मा का साइंस, क्योंकि जीव है तो जीवन है। अंतिम 5 मिनट है, लास्ट 5 मिनट्स आई विल स्पीक, प्लीज पे अटेंशन। लड़कियां थोड़ी बहुत सुन रही हैं, बच्चों का पता नहीं, आप लोग सुन रहे कि नहीं? आज बॉयज लिसनिंग और स्लीपिंग? ओके, थैंक यू, गुड। एंड गर्ल्स लिसनिंग, फीलिंग गुड बेटा? आपको सुनना है 5 मिनट? ओके, थैंक यू, पे अटेंशन। हम ये चाहते हैं आपकी पढ़ाई, आपका मन अच्छा हो, शांत, मन शांत हो। आपकी बुद्धि जो है, जो बहुत बड़ी बुद्धि है, बहुत बुद्धि है, वो जगे ना सोए। बुद्धि सो गई, जैसे ड्राइवर सो गया गाड़ी का, तो क्या होता है? अपघात होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। इफ द ड्राइवर स्लिप्स, देन व्हाट हैपेंस? एक्सीडेंट। वैसे ही जब अपनी बुद्धि सो जाती है, दिमाग काम नहीं करता है, हमसे क्या होती है? गड़बड़ हो जाती है, अपना गलती हो जाती है। तो बच्चों, साइंस का मतलब होता है वो ज्ञान। By definition, science means the knowledge which never changes, the knowledge which is always true, the knowledge which is always true all times. भूतकाल में वो सत्य था, वो ज्ञान आज भी सत्य है, आगे भी सत्य होगा। साइंस अनेक प्रकार का है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, ये सब साइंस। लेकिन ऐसा साइंस जो कभी बदलता ना हो, सत्य हो हमेशा। ये नहीं कि वो आज पता नहीं, आज अलग है, कल अलग हो जाएगा, वो साइंस नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो रिसर्च है। और ऐसा ज्ञान कौन दे सकते हैं? भगवान देते हैं, भगवान देते हैं, उसे बोलते हैं वेद। अंतिम लास्ट पॉइंट कि बच्चों, आपने देखा होगा, सभी यहाँ पे भी फोटो है, माता देवी सरस्वती का फोटो है, जो विद्या की देवता है। आपने देखा है फोटो? पीछे फोटो है, कौन है? देवी शारदा, माँ सरस्वती है ना? उनके हाथ में बुक्स है, नॉलेज। कौन से बुक्स है वो? वेद। क्या बोलते हैं? वेद। वेद मतलब क्या है? जो भगवान ने ज्ञान दिया है। किसको दिया था? पहले ब्रह्मदेव को दिया था। जो ब्रह्मदेव का जन्म होता है, कैसे होता है जन्म? भगवान विष्णु के नाभि के कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। एनीवे, तो मैं समझना चाहिए, ज्ञान भगवान से आता है। क्यों? वही जानते हैं सत्य क्या है।
हम नहीं जानते हैं। हमें तो ये भी पता नहीं हम इस शरीर में, जीवन में, दुनिया में कितना दिन है, नहीं पता। हम दुनिया में जो आए जन्म लेके, पता नहीं कहाँ से आए। हम जब जाएंगे यहाँ दुनिया छोड़ के, कहाँ जाएंगे पता नहीं, अपना ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान जानते हैं। क्या जानते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो बच्चों, हमें बस यही बोलना है, यदि हम भगवान से जुड़ते हैं श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, हमें शक्ति मिलती है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, जिससे अपना जीवन महान बनता है। एनी क्वेश्चंस? किसी का सवाल है? किसी को कोई डाउट्स है? कुछ पूछना है किसी को? तो ये समझना चाहिए कि अपना जीवन जो है, दुनिया जो है, भगवान की वजह से है, जो सबके माता पिता है, जो दुनिया केवल बनाते नहीं हैं, दुनिया को चलाते भी हैं, संभालते भी हैं। जैसे बच्चों अपने स्कूल जो है कोई चलाता है, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, कमेटी होती हैं, चलाती हैं। वैसे ही दुनिया जो बनी है, ऐसे कोई बिग बैंग से नहीं बनी है बाय एक्सप्लोजन। दुनिया बनी है भगवान की योजना से, बुद्धि से। और दुनिया चलती अपने आप नहीं चलती है बिना कोई भगवान के। दुनिया भगवान चलाते हैं। ये श्रद्धा जो है यदि हमें होगा भगवान में, तो अपना मन जो है बिगड़ेगा नहीं, मन भटकेगा नहीं। आत्मज्ञान से हमें, बस लास्ट पॉइंट, प्ले अटेंशन, बोलो, आत्मज्ञान से हमें आत्मबल मिलता है। देखो, बल तो बॉडी का नहीं होता है, बल आत्मा का होता है। डेड बॉडी भी बॉडी है, इन डेड बॉडी में कोई बल नहीं होता है। डेड बॉडी को उठाना पड़ता है सबको। क्यों? उसमें आत्मा नहीं है, तो बॉडी में कोई बल नहीं है। तो हमें समझना चाहिए, बल जो होता है अपने पावर आत्मा की होती है। तो आत्मज्ञान से आत्मबल मिलेगा। जिसमें आत्मबल है उसमें आत्म संयम होता है, आत्मविश्वास होता है। और फिर जो उस व्यक्ति में संयम है उसको शांति मिलती है। जिसका मन शांत है उसे सुख मिलता है, जिसे सुख मिलता है उसे जीवन का समाधान मिलता है। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। Guruji, the excellence, good afternoon to all of you. As a teacher, now Guruji given most valuable values among all of us. Being a Navodaya student, study, then he is a devotee of ISKCON and he visited different schools. He is giving a valuable service, that is moral, spiritual, moral values to the students. Then he Navodaya different area, not only administration, various other areas, they are giving a wonderful contribution to the society. Guruji, we are very thankful, most welcome, and thank you for your visit and inspiring, educating our future leaders for their bright future. Just I don't take much time, just 1-2 minutes. Dear children, this is a wonderful opportunity for you to learn value system. You get education through books. Unfortunately, in the present day education system, you don't get too much of value system in your textbooks. That is why you better study Bhagavad Gita. Today, we are very fortunate to have Swamiji from ISKCON, Sri Jagannath Yatra Das Ji. He is a renowned, wise monk from ISKCON, and he banded different number of Navodaya schools and gave lots of discourses. Now, whatever Swamiji has told you,
is from Bhagavad Gita. Largely from Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is an authentic book where you can get all the relevant information, whatever Swamiji has told you. So, get benefited by it. Read all of your Bhagavad Gita. Today you take a oath. Take a note that today onwards I will study Bhagavad Gita. At least some lessons every day you read. You will be largely benefited. Now, I take this opportunity to thank our Vice Principal Sir, CCA Department, and Swamiji and students who patiently listen to this. Thank you.